Hello dear student, today's class we are discussing about the next topic or next chapter number 8, that is does how do organism reproduce. Okay, chapter number 8, that is how do organism reproduce. So in this chapter, this is a chapter of class 10th. In this chapter we are discussing about how do organism reproduce and what type of reproduction is occur in animal and plant. Generally there is a two mode of reproduction, sexual reproduction and asexual mode of reproduction. Okay, generally if we talk about reproduction is the process by which all organisms मल्टीप्लाई इन द नंबर एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. क्या होता है रिप्रोडक्शन में? रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं अपने नंबर में और इंक्रीज करते हैं अपनी पॉपुलेशन को. ओके और अपने नंबर में क्या करते हैं? इंक्रीज होते हैं. जनरली इफ वी टॉक अबाउट डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, सो द आंसर इज यस. Some animal have a capacity to create exact copy of themselves. Which type of animal? Those animal who reproduce asexually, they make their exact copy or that copy is called colons. Okay, that copy is called colons. This we discussed already in the class 9th chapter. Okay, when they have a capacity to divide their cell and create the exact copy. Due to the dividation of their cell bodies, their DNA are also same. Due to the DNA are the this DNA is transferred to next generation and they are the exact copy. So but in some animal, those who reproduce sexually do not show the exact copy of themselves. Reproduction create of DNA copy. The cell use a chemical reaction build a copy of their DNA. This create two copy of DNA and reproduce cell. They will need it to separate from each other. However, keeping of copy DNA's original cell is similar, pushing to the other out would not work. ओके दैट मीन्स यस, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है रिप्रोडक्शन की. तो दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं वो सेल डिवीज़न के थ्रू होता है. सेल्फली डिवाइड होते हैं और अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्ट कॉपी देखने को नहीं मिलती है. तो कुछ एनिमल डेफिनेटली एग्जैक्ट कॉपी बनाने की कैपेसिटी रखते हैं और कुछ एनिमल एग्जैक्ट कॉपी बनाने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं. आई होप सो यू क्लियर दैट. Now we are discussing about the reproduction. Generally reproduction are two type, that is sexual reproduction and asexual reproduction. We talk about reproduction are generally two type. Asexual reproduction is a method of reproduction that involve only one organism. A single organism reproduce two or more or multi-organism on its own. This is seen in all unicellular organisms, some multicellular organisms and few plants. मतलब क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोडक्शन करता है और मल्टीप्लाई होके अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है. The second one, sexual reproduction, the mode of reproduction that involve two individual on male and one on female. They produce sex cells or gamete which fuse to form a new organism. और इस तरीके से वो क्या करते हैं? न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड form a new organism. Okay, now we are discussing about the different mode of reproduction. Mode of reproduction using by the single organism. That means what we discuss about the asexual mode of reproduction. First we discuss about the fission. Okay, what we discuss about fission. Fission is an asexual reproduction that is commonly in most of the unicellular organism. When the fusion result in the two daughter cell, it is binary fission. When binary fission result in many daughter cell, it is called multiple fission.
Planes of the fission may be different for the different organism. Okay, दैट मीन्स क्या होता है किसके अंदर किसी किसी के अंदर फ्यूज़न की कैपेसिटी होती है. फ्यूज़न की कैपेसिटी दैट मीन्स कुछ एनिमल जो होते हैं वो सेल्फ डिवीज़न करते हैं यूनिसेल्युलर और अपने जैसे ही नए डॉटर सेल का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं. सी द डायग्राम बाइनरी फ्यूज़न आर सी इन अमीबा. सी देयर इज अमीबा. अमीबा what happened in amoeba division? The amoeba, the DNA the nucleus get divided, enlarge in their size. See, the nucleus enlarge in their size. Due to this, the dense cytoplasm also present in it. After that, the DNA get copied out and the cytoplasm will be divided. The cell get splitted into two new cell, and this way binary fission has been completed. Okay, like that way the binary fission are completed. दैट मीन्स क्या होता है अमीबा जो होता है वो क्या करता है अपने ही जैसे दो नए डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है किसके थ्रू बाय द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड बाय द डिवीजन ऑफ व्हाट बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके, और दो नए सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते. Now we are discussing the second one, that the second one is budding. Okay, now there is a fragmentation. If we talk about the fragmentation, that means what would be happened in this method. Generally, fragmentation is the process by which an organism get fragmented into small pieces and each piece grow into the whole new organism. क्या होता है फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर वो क्या करते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्रेक डाउन होके स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं और हर एक स्मॉल पीस के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो अपने जैसे ही न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या कर ले डेवलप कर ले. सच टाइप ऑफ division or such type of reproduction I saw in a Spirogyra. Okay, Spirogyra is a fungi, okay, which shows such type of asexual mode of reproduction. Other than that, the next method is regeneration. The next method is regeneration. If we talk about regeneration, regeneration is the process of growing back lost organ और body part by the organism. ओके, रीजनरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि कोई बॉडी पार्ट जो होता है उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे ही टूट के जब वो गिरता है तो अपने जैसे ही न्यू इंडिविजुअल का क्या कर लेता है फॉर्मेशन कर लेता है. किसके अंदर इस तरीके का हमको देखने को मिलता है? इस तरीके का रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है हाइड्रा के अंदर और प्लेनेरिया के अंदर. जब हाइड्रा के टेंटिकल्स गिरते हैं और वो टेंटिकल्स डिवाइड होते हैं तो वो अपने जैसे ही न्यू हाइड्रा का या प्लानेरिया का क्या कर लेते हैं फॉर्मेशन कर लेते हैं. सी, इसमें एक कॉमन चीज़ ये है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों हाइड्रा के अंदर देखने को मिलते हैं. ये दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं जनरली इसके अंदर देखने को मिलते हैं. किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर. हाइड्रा शो बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड, दैट इज फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन. आई होप सो आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो. Now then if we talk about the next one, see there is a next method. That method is called budding. Okay, the method is budding. If we talk about the budding that means budding is a type of asexual reproduction in which a small cyst-like structure is formed. A small cyst-like structure is formed on the parent body which give a rise to new individual. Bud may remain attached to the parent or may separated become new individual. Okay, see the diagram. By the help of diagram you understand easily. See the diagram. Hydra show the Hydra is the animal which show the method of बर्डिंग. सी, क्या होता है सबसे पहले बर्ड का एक आउटर ग्रोथ बनती है. ये जो आउटर ग्रोथ होती है इस आउटर ग्रोथ को बोला जाता है बर्ड्स. ये बर्ड्स धीरे धीरे क्या कर लेते हैं अपने साइज में इंक्रीज हो जाते हैं और ये अपने साइज में इंक्रीज होके क्या कर लेते हैं या तो उनकी बॉडी के ऊपर ही या उनकी बॉडी से टूट के नीचे
गिर जाते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या हो जाते हैं, फॉर्म्ड हो जाते हैं। इस तरीके से बडिंग की मेथड देखने को मिलती है जिसके अंदर क्या होता है, बड्स का फॉर्मेशन होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट वन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इफ वी टॉक अबाउट this is a type of asexual reproduction seen in a plant. Vegetative part of the plant like leaves, stem, root give rise to the new plant. The vegetative propagation can be artificially or naturally. Natural vegetative propagation happen through leaves like bryophyllum, stem like turmeric, ginger, runner stolon like grass and runner strawberries, bulbs like onion and lilies. Other than that, the artificial method include cutting, grafting, layering and the plant tissue culture. Now we are talking about the vegetative propagation. एक ऐसी मेथड होती है जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप ही होती है। इसके अंदर क्या होता है, या तो ये आर्टिफिशियली भी हो सकती है और नेचुरली भी हो सकती है। यहाँ पे प्लांट के हर एक पार्ट में कैपेसिटी पाई जाती है कि वो अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या कर सके, डेवलप कर सके। जैसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमको लीव्स में, ब्रायोफाइलम की लीव्स में देखने को मिलता है। सीधा डायग्राम, ब्रायोफाइलम अपने ऊपर न्यू लीव्स का फॉर्मेशन कर देती है, ये लीव्स टूट के गिर जाती है और फेवरेबल कंडीशन में ये क्या कर जाते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं। स्टेम्स टर्मरिक जिंजर में देखने को मिलता है, इनके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है। बल्ब्स, इनके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है। आर्टिफिशियल मेथड की अगर हम बात करते हैं तो कटिंग, ग्राफ्टिंग, जो हमारी अर्ली क्लासेस में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है ये एक ऐसी मेथड होती है जिसके अंदर आर्टिफिशियली लैब के अंदर क्या किया जाता है, टिश्यू को प्लांट बॉडी से सेपरेट किया जाता है। उन सेल्स को सेपरेट किया जाता है टिप ऑफ द प्लांट जिनके अंदर कैपेसिटी पाई जाती है कि वो बहुत रैपिडली ग्रोथ करें। ये जो सेल होते हैं, इन सेल्स को बोला जाता है कैलस। क्या बोला जाता है, कैलस। कैलस को ट्रांसफ़र किया जाता है एक हार्मोनल मीडियम के अंदर और फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है नेक्स्ट हाँ उसके अंदर, दैट मीन्स मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे मैच्योर प्लांट बन जाता है। ये जो प्लांट होती है इसकी खासियत ये होती है कि ये डिसीज़ फ्री कंडीशन के प्लांट होते हैं और हमारे फेवरेबल जो भी हम उनसे डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहते हैं वो वाले होते हैं। और साथ साथ में ये जो होते हैं इनको मेनली इसमें टिश्यू कल्चर टेक्निक किसके अंदर यूज़ की जाती है, ऑर्नामेंटल प्लांट में ज़्यादा की जाती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग about the next topic, that is spore formation. If we're talking about the spore formation, organisms such as fungi make a spore that can grow into complete individual इंक्लूडिंग वैन डिसअपियर फ्रॉम द फ्रूटी बॉडी। ठीक है, ऐसी फ्रूटी बॉडी उनके ऊपर देखने को मिलती है। इनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे राइजोपस एक तरीके की फंगी होती है, उसके अंदर ये देखने को मिलता है। ये जो स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स आगे जाके जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन होती है, इनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो बूस्ट आउट हो जाती है और क्या कर लेती है, गिर जाती है और गिर के न्यू फंगी ग्रुप का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन मेथड देखने को मिलती है कुछ फंगीज में, जैसे राइजोपस के अंदर। ओके, सो ये हमने किसके बारे में बात करी, हमने बात करी है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। In our next class, we are discussing about the next topic, that is sexual reproduction. Okay, which topic we discuss in our next lecture? We are discussing in next lecture, that is sexual reproduction. Okay, and student, please try this question at your home to solve it. How does binary fission differ from the multiple fission? How do organisms be beneficial by the reproduction through the spores? Can you think of reason why more complete organisms cannot give rise to new individual through regeneration? Why the vegetative propagation participate for the growing some type of plant, and why is the DNA copying in the essential part of the process of reproduction? Okay, solve this 5 question in your copy. Okay student,
नेक्स्ट क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, आप इसे अपने होमवर्क कॉपी के अंदर राइट डाउन करें। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट। हम नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो टेक केयर एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी।